Yes, good morning. Let us start, children, with the new theme. That is your Yes, theme 6, mm, Bhakti and Sufi traditions. yes, ma'am. In chapter 4, also, we have studied a little bit about these things when we studied Jainism and Buddhism. Okay, now let us start. By the mid first millennium CE, the landscape of the subcontinent was dotted with a variety of religious structures, stupas, monasteries, and temples. Okay, that I was telling कि हमने ये आपका फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था. Okay, this Okay, period ma'am. is referred to poet saints, those who stated themselves in regional languages orally, and whatever they have explained in regional languages that was easily understood by common people. Okay, because of the regional language of the common people. Such compositions were set to music and documented by the disciples or dedicated after the death of such saints. As traditions were not rigid, different kind of religions were followed by the different people. The generations of dedicated people who were there to look after and care for the original messages. They brought some changes or left the idea. Those were appeared either problematic or pertinent in the context of political and social aspects. Okay, जो चीजें उनको प्रॉब्लमेटिक लगती थी या लगता था कि ये उनकी पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स को सूट नहीं करती हैं, those things were left by them. And to use such sources, ये भी एक चैलेंज था for writing the history. Historians draw on hagiographies and biographies of saints. Those are elaborated by their disciples or members of their religious sect. It is expected that they may not be literally accurate. Okay, whatever the written in the hagiographies and the biographies, ये जरूरी नहीं है कि वो exactly बिल्कुल सही चीजें हों, but it gives a vague idea. It's allow a vague view into the ways in which the devotee wanted to perceive the lives of these path breaking women and men. And in this chapter इन्हीं सब elements को हम और closely और detail में पढ़ेंगे. Or you can say कि these allowed a glimpse into the ways in which devotees perceived the lives of the poet saints. Many poet saints were there, and one of the picture is also here of Manikwa Chakar. ठीक है, he was a devotee of Shiva, and this is the picture of that uh, poet. And children at that time, even these poet saints, their statues were kept into the temples because people were so much influenced by them. Okay, Yes, ma'am. then by the first, wait,
Wait a minute. Slide change नहीं हो रही है क्या? Okay. Children, let us come to the next heading, a mosaic of religious beliefs and practices. Okay, most impressive features of this aspect is increasing visibility of a big range of gods and goddesses in the sculpture as well as in text. ठीक है, बहुत सारे gods and goddesses को लोग बाग मानने लगे थे, and the major deities which they used to worship at that time were your Vishnu, Shiva and goddess. ठीक है, और they are not in simply in the one form, they are worshipped in many forms, in a variety of forms. ओके, जैसे हमने देखा ना कि लाइक कृष्णा का हमने पढ़ा था कि विष्णु जी का कि ही हैज 10 इनकारनेशंस, है ना, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था. तो not only one form of his, many forms of these gods were worshipped at that time. Then the integration of cults. Historians have suggested that there are two processes at work. Okay, ये सारे जो आपके डेवलपमेंट्स हो रहे थे, it has at least two processes at work. One process was disseminating Brahminical ideas, means spreading the Brahminical ideas. Side by side, they were accepting, Brahmins were accepting and reworking the beliefs and the practices of other social categories. Understand children? एक तरफ तो जो उनके ब्राह्मणिकल आइडियाज थे वो उनको स्प्रेड कर रहे थे, और साथ साथ कुछ चीजें ऐसी थी हमारी जिनको कि उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था, पीपल ने, तो उन सब आइडियाज को भी ब्राह्मण्स वाज ट्राइंग टू एक्सेप्ट, और जो नई बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस थी उनके ऊपर नई नई सोशल कैटेगरीज जो पहले आपकी एक्सक्लूडेड थी, लाइक योर विमेन एंड शूद्रास, है ना, उन सब का ये था कि ये लोग वेदास नहीं पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो उन सब चीजों को भी उन्होंने अब एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, ब्राह्मण्स ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. They were ये Brahminical ideas were compiled and composited in easy and simple Sanskrit, ठीक है, so that everyone can understand them. ठीक है, पहले आपका ये बहुत डिफिकल्ट जो आपकी ओरिजिनल संस्कृत थी उसमें लिखा हुआ था, तो दैट वाज नॉट अंडरस्टूड बाय द पीपल, बट नाउ आपका ये सब चीजें सिंपल संस्कृत में लिखी जा रही थी. इवन नाउ दीज थिंग्स आर मेड एसेसिबल टू विमेन एंड शूद्रास, जिनको कि पहले वैदिक लर्निंग के लिए एक्सक्लूड करा जाता था कि दे वर नॉट अलाउड टू डू दिस. इवन शूद्रास वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल एट दैट टाइम.
many beliefs and practices were getting new shapes. By regular conversation which took place between the common people throughout the land. एंड इसी का एक एग्जाम्पल है कि आपका जो जगन्नाथपुरी का टेम्पल है, जहाँ पर जो कि आपके जगन्नाथ कौन है, आपके विष्णु की ही एक फॉर्म है, ठीक है। एक ये मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है जो इस दोनों प्रोसेस को कंबाइन करके आया है कि द प्रिंसिपल डेटी वाज आइडेंटिफाइड बाय द 12th century एज जगन्नाथ, जो आपकी डिफरेंट फॉर्म ऑफ विष्णु है। एंड जगन्नाथ का मतलब क्या होता है, द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। एंड यू कैन सी द पिक्चर, ठीक है। जो एक्सट्रीम राइट पर है वो कौन है, आपके जगन्नाथ हैं, और साथ में उनकी सिस्टर सुभद्रा एंड उनके ब्रदर बलराम का वो दिखाया हुआ है इसमें पिक्चर, राइट। और आप देखते भी हो ना कि मई के महीने में और जून में, या तो एंड ऑफ द मई या जून में आपके जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, ठीक है। तो ये आपके वही जगन्नाथ भगवान जी हैं, ओके। ओके, ये जो आपकी स्टैचूज हैं, दीज वर built by wood and stones, and the local deities were defined as the wife of the principal main deity, ठीक है। एक तो जैसे आपके ना बहुत सारे गॉड्स हैं, उनके लिए लिखा है हमने, गॉडेसेस आपकी यूज होने लगी थी। और ये लोकल गॉड्स एंड स्टैचूज हैं, ये आपकी वुड एंड स्टोन से बनाई जाती थी। द गॉडेस वर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ स्टोन एंड वुड, और ये माना जाता है कि इनका एक पुराणिक जो हमारा फ्रेमवर्क है, दोज वर सेट अकॉर्डिंग टू दैट। एंड जैसे हमने देखा है ना कि हमारे यहाँ विष्णु की वाइफ कौन है, लक्ष्मी जी हैं, है ना, उनको वर्शिप किया जाता है। शिवा की वाइफ कौन है, पार्वती, है ना। तो जो आपकी मेन डेटीज थे उनको उनकी वाइफ्स के साथ यूज किया जाने लगा था, उनके साथ उनका वर्शिप किया जाने लगा। अब आपने देख लिया कि जो आपका लोकल ट्राइबल्स पीपल हैं, दे वर स्पेशलिस्ट इन मेकिंग ऑफ दीज वुड एंड स्टोन स्कल्पचर्स। एंड इस तरीके से आपका डिफरेंट गॉडेसेस कल्ट्स भी आपका आ जाता है, डिफरेंट गॉडेसेस वर वर्शिप्ड एज वेल एज different gods were worshipped at that time. Then we will come to the next heading, difference and conflict. जो आपकी गॉडेस की वर्शिप है ना, बहुत सी जगह इनको इन्होंने क्या बोला है, एज तांत्रिक पूजा। जानते हैं आप तांत्रिक पूजा क्या होती है? यस चिल्ड्रन। ब्लैक मैजिक कहते हैं हाँ वो। हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्युटली राइट। जैसे बंगाल के लोगों का सुना है ना कि वो तांत्रिक पूजा करते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपकी गॉडेस की जो वर्शिप है, इसको इन्होंने तांत्रिक पूजा से भी एसोसिएट किया है। एंड तांत्रिक प्रैक्टिसेस वर वाइड स्प्रेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, एंड एनीवन, ईदर विमेन और मेन, ठीक है, and people belonging to any caste, people belonging to any uh, class, ठीक है, whether they are rich or poor, ठीक है, everyone can join these तांत्रिक पूजास, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर चंडी माँ की, काली माँ की जो पूजा करते हैं बहुत से लोग, जैसे हम नवरात्रे रखते हैं ना, तो हम तो सिंपल नवरात्रास रखते हैं, हवन करते हैं, उनका पूरा वर्शिप करते हैं। पर बहुत से जो लोग तांत्रिक होते हैं, दे यूज टू वर्शिप these goddesses at night, वो जो पूजा करते हैं, that is the tantric puja. And many of these ideas were influenced by
Shaivism as well as Buddhism. ठीक है, Shaivism, those people who are those who believe in Shiva. ठीक है, and Vaishnavism क्या था? The people who believes in विष्णु भगवान. एंड ये चीजें आपकी कहाँ पर प्रेवलेंट हो रही थी उस समय? इन ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. एंड ये भी सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, दीज डाइवर्जेंट प्रैक्टिसेस, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, है ना, came to be classified as Hindu over the course of the next millennium. ठीक है, ये सब वर्शिप कौन कर रहे थे? हिंदू लोग कर रहे थे. And the divergence is perhaps most stark if we compare the Vedic and Puranic traditions. ठीक है, as we have already studied, the principal deities of the Vedic time were your Agni, Indra, Soma. ठीक है, but these were not worshipped so much now. They became the marginal figures, and rarely they were found in text and in the form of statues and people worshipping them. ठीक है, जो हमारा वैदिक समय में हम जो अपना पूजा कर रहे थे पुराने समय में, इंद्र, सोम एंड अग्नि देवता की, गॉड की, उन सब की जगह नाउ दे आर टेकिंग द न्यू शेप. एंड अब किसकी वर्शिप ज्यादा होने लगी थी? विष्णु, शिवा एंड गॉडेस. ठीक है, दो जब हम कोई अपना जैसे आपका सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उस समय वाइल चैंटिंग दी मंत्रास, इन आपके अग्नि, इंद्रा एंड सोम, इन सबको, इन सब से रिलेटेड आपके मंत्रास वर चैंटेड. दो देर वर सो मेनी डिस्क्रिपेंसीज इन दिस पीरियड, है ना, जो पुराना हमारा वैदिक एंड पुराणिक जो आपका वे ऑफ फॉलोइंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस था, दैट हैज बीन चेंज टू अ लास्ट extent. So many discrepancies were there, but still Vedas continue to be revered as authoritative. ठीक है, अभी भी लोग बाग जो वेदास हैं उनको पूरी रिस्पेक्ट देते थे, और उसको एक जो भी वहां पर कुछ लिखा हुआ है उन सब चीजों को एक अथॉरिटी की फॉर्म में पाते थे. और जैसे इन्होंने बताया ना कि इवन जैसे हमने कहा कि बुद्धिस्ट, जैनिज्म भी उस समय प्रेवलेंट था. तो ये एक पिक्चर दी हुई है. दिस इज द पिक्चर ऑफ दी मैरिची, जो कि आपके एक बुद्धिस्ट गॉडेस हैं. ठीक है, जैसे अभी हमने आपका जिक्र किया था पार्वती एंड लक्ष्मी का, द सेम वे दिस गॉडेस वाज वर्शिप्ड बाय द बुद्धिस्ट पीपल. एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि वेदास वर रेवेरेंट, बट sometimes conflicts were also there. Those who valued the Vedic tradition, they often condemned the practices that went beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of the sacrifices and or precisely chanted by mantras. मीन्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट कल्ट्स चल रहे थे, है ना, और उन सब ये सब चीजें एक दूसरे को अपोज कर रही थी, इनमें एक दूसरे में कन्फ्लिक्ट हो रहा था. जो वैदिक ट्रेडिशन वाले लोग थे वो अपनी चीजों को सुपीरियर मान रहे थे. ठीक है, जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे वो वेदास की अथॉरिटी को कंडेम कर रहे थे. एंड जो आपके डिवोटीज हैं, जो जिस भी भगवान के लिए मान रहा है ना, जो जैसे आपके कुछ लोग विष्णु भगवान को एज ए सुप्रीम पावर मान रहे हैं, तो दे वर वर्शिपिंग विष्णु. एंड दोज हु आर कंसीडरिंग शिवा एज अ सुप्रीम पावर, वो शिवा की वर्शिप कर रहे थे. एंड पीपल हैड सम conflicting or the relations with tensions with Buddhism and Jainism.
many things were becoming popular at this time. The singing and chanting of the devotional compositions, ठीक है, ये उनका पार्ट ऑफ वर्शिप हो रहा था, मोड ऑफ वर्शिप था दैट द पीपल आर फॉलोइंग. And this was particularly true with the followers of the Vaishnava, people worshipping Vishnu, and Shaivism, the people worshipping Shiva. ठीक है, तो वो सब जो अपना आपका जो उनका वे ऑफ वर्शिपिंग था, नाउ इन द फॉर्म ऑफ सिंगिंग एंड चैंटिंग. जरूरी नहीं था कि फॉर दैट दे हैव टू रीच टू द टेम्पल्स, कहीं भी बैठ करके वो अपना भजन कीर्तन कर सकते. Right, children? Then poems of prayer, early traditions of bhakti. Now many leaders, many poet saints, ठीक है, they became the leaders and and the community following them, ठीक है, became their disciples. ठीक है, बहुत सारे जो पोएट सेंट्स जो आपके ये पोएम्स लिख रहे थे रिलेटेड टू द गॉड्स, ठीक है, तो वो लोग क्या हो जाते हैं उस समय एक रिलीजियस लीडर की तरह काम करने लगते हैं एंड उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं. दो ब्राह्मण्स वर स्टेट इम्पॉर्टेंट मीडिएटरी बिटवीन गॉड्स एंड द डिवोटीज. ठीक है, गॉड और जो पीपल हैं जो भक्त हैं उनके बीच में ब्राह्मण्स का अभी भी वही अपना इम्पॉर्टेंट रोल था. ठीक है, इन मैनी फॉर्म्स ऑफ भक्ति, चाहे विष्णु है, आपका गॉडेस हैं या शिवा हैं, सब में वो एक मीडिएटरी का रोल प्ले कर रहे थे. जैसे पहले था कि विमेन वर नॉट given so much importance, the people of lower caste, lower categories, ठीक है, they were disqualified for the worship or for the liberation within the orthodox brahminical framework. ठीक है, but now the things are changing. ठीक है, even कोई भी पर्सन किसी भी कास्ट का है, किसी भी कैटेगरी का है, ठीक है, they can worship and even Brahmins were also accepting these things. और ये जो भक्ति मूवमेंट को एक्सेप्ट करने का लोगों का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि those people who were neglected by the Brahmins, those were not allowed like Shudras, ठीक है, even women were not given so much importance कि वो बहुत frequently अपना इस तरीके से इन चीज़ों में engage हो सकती हैं, making sacrifices and all that. ठीक है, तो उन सबको लग रहा था कि the problems which were they facing in the past, है ना, now those were over and they were now became the follower of this bhakti movement. And जो आपका ये वर्शिप है ना, this focused on two kinds of worship. ठीक है, कि जो deities हैं they were present in two forms, in two categories, you can say Saguna and Nirguna. Sarguna means with their attributes and Nirguna means without attributes. ठीक है, सगुना मीन्स जैसे हम एक इमेजिन कर लेते हैं, है ना, कि कोई एक गॉड है, उनके ये कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, सपोज विल टेक द एग्जांपल ऑफ गॉडेस देवी दुर्गा माँ का, कि उनके अष्टभुजाएं हैं, उनके एक हाथ में ये कमंडल है, त्रिशूल है, ठीक है, एंड शी इज सिटिंग ऑन ए लॉइन. तो वो हमारी एक क्या हो गई, सगुन वाला पार्ट हो गया कि हम अपनी वर्शिप उसी तरीके से उनको इमेजिन करके करते हैं. एंड दिस कुड बी विद एनी गॉड लाइक विष्णु, शिवा एंड उनके जो इनकारनेशन है एंड डिफरेंट गॉडेसेस. ठीक है, उन सबको हम इन सब फॉर्म्स में वर्शिप करने लगे. तो ये क्या हो गया, आपका सगुना वर्शिप हो गया. दूसरा क्या है, निर्गुणा भक्ति. ठीक है, इसमें एक हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड को वर्शिप करते हैं. उसमें गॉड की कोई फॉर्म या शेप नहीं होती है ना, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि कॉन्सेंट्रेट इन द मिडल ऑफ योर फोरहेड. ठीक है, एंड यू कैन रीच टू द गॉड.
ठीक है, तो ये इस तरीके की भक्ति को उस समय प्रोपेगेट किया जा रहा था. Abstract form of God was worshipped. Then Alvars and Nayanars of Tamil Nadu. Yes, children, who were Alvars? That we have already studied. Ma'am, they are mainly devoted to Lord Vishnu, Yes, and Nayanars were the to Shiva. people worshipping Shiva. Okay. So this we will study now, particularly about the Tamil Nadu. Some of the earliest bhakti movements were led by the Alvars, okay, and some by the Nayanars. These people used to travel from one place to another place, singing hymns in Tamil in praise of their gods. ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे. एंड जैसे हमने बताया कि एट दैट टाइम भजन कीर्तन्स दोज वर मोर फोकस्ड, so they used to sing songs in the praise of the gods, those who in which they believe. And they during their travels, alvars and nayanars, ठीक है, जब ये लोग अपना इस तरीके से जाते थे तो some place they found as more sacred, right? तो certain shrines they considered as adobe of their chosen deities. ठीक है, अलवार्स अपनी शिवा के लिए और नैनास फॉर भगवान विष्णु, उनको लगता था कि ये उनके रहने की जगह है. जैसे हम कहते हैं ना कि कैलाश पर्वत पर आपके शिव भगवान रहते हैं, राइट? तो वेरी ऑफन large temples were built at these sacred places, and later on these sacred places became the pilgrimage centers. And people used to sing compositions of their poet saints, and this become a ritual in the temples and in these shrines. Even the worship of saints images were done. ठीक है, जो सेंट इमेजेस जिन्होंने ये आपके भक्ति भजन लिखे हैं, ये सब करा है, उन सब की इवन स्टेचूज वहां पर आपकी इमेजेस जो है टेम्पल्स में रखी जाती थी. एंड पीपल यूज टू वर्शिप देम, और जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान की आरती करी जाती है ना, उसी तरीके से जो कंपोजिशंस आपकी इन पोएट सेंट्स की थी, दोज वर एक रिचुअल बन गया था कि वहां पर टेम्पल में इन कंपोजिशंस को गाया जाएगा. राइट बेटा? सिंगिंग द religious songs of the poet saints, they become the part of the rituals in such shrines. जो हम अभी बात कर रहे हैं ना कि they used to move from one place to another place singing the songs, and some places they find as a body of the god, a body of their chosen deity. And later on temples were built at these sacred places, and these became the pilgrimage centers. And the poet saints who has composed these things, they were also worshipped. Their picture images were there, as well as whatever they have composed, it becomes a ritual there. ये आपका डेली प्रैक्टिस का पार्ट हो गया था कि उनकी इन कंपोजिशन को आपका वहां पर जैसे हम आरती गाते हैं उस तरीके से गाया जाए. ओके, यस बेटा, अप टू दिस पार्ट थिंग्स आर क्लियर, or you want to ask anything? Yes, Clear. clear to everyone? Okay, let us move to the Yes, next ma'am. heading. Then the attitudes toward the caste. Okay, some historians, those who have written the history of this period, है ना, they were with the view कि जो आपके अल्वाज एंड नियानार्स हैं, they have initiated a movement of protest against the caste system, or
द डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण्स, ठीक है, जो उस समय आप भी होता था कि जो ब्राह्मण ने कह दिया, इवन राजा भी उनको ही फॉलो करते थे, ठीक है, और एटलीस्ट दे वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, रिफॉर्म द सिस्टम in which many people were being neglected on the basis of their caste and gender, ठीक है। तो ये जो आपकी प्रैक्टिस ऑफ अल्वाज एंड एएनआर्स थी, उनके अकॉर्डिंग people from any caste, from any class, from any gender can join them, okay। तो उन्होंने इन सब जो पुरानी ब्राह्मणिकल थॉट्स थे उन सबको ब्रेकअप कर दिया। और इनके जो भक्तास थे, जो डिवोटीज थे, they were from different social backgrounds ranging from brahmins to artisans and cultivators and even from the caste considered as untouchables, ठीक है। अब जो आपके डिवोटीज थे, है ना, जो इनको ज्वाइन कर रहे थे, वो डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से थे। इवन ब्राह्मण्स वर ज्वाइनिंग दीज नयनार्स एंड अलवार्स, और कोई भी आपका क्राफ्ट पर्सन है जिनको कि पहले लोअर कास्ट का समझा जाता था, जैसे ब्लैक स्मिथ हैं, ये सब हैं, कोई भी आपका क्राफ्ट पर्सन, कोई भी चाहे आपका कोई किसान है, ठीक है, या पीपल फ्रॉम द अनटचेबल क्लास, शूद्रास, चंडालास, anyone can join these alvars and nayanars. एंड इवन जो आपके ये अलवास एंड नयनार्स हैं, है ना, इनके जो कंपोजिशंस हैं, है ना, इसके लिए ये लोग कहते थे कि इनके लिए इनकी इम्पोर्टेंस वेदास की तरह ही है, ठीक है। दे these important these compositions were as important as Vedas to them, ठीक है। हम मेनली आपका तमिल के पार्ट का पढ़ रहे हैं। तो फॉर इंस्टांस वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ द कंपोजिशंस बाय अलवास, ठीक है, नायलाइरिया दिव्या प्रबंधम, ठीक है, ये इसका नाम है, was frequently described as the तमिल वेदा, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये जो आपका नलाइरा दिव्या प्रबंधम है, ये क्या है, आपका तमिल वेदा है, thus claiming the text, ठीक है, उनके लिए अब जो टेक्स्ट है, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एज द फोर वेदास इन द संस्कृत, ठीक है, जिसको कि ब्राह्मण बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे, राइट। इसी तरीके से दीज पीपल ऑल्सो गिवन वैल्यू टू देयर तमिल वेदास, ओके। देन वी विल सी द women devotees, नेक्स्ट हेडिंग। जैसे हमने बताया कि एवरीवन कैन जॉइन दीज, है ना, चाहे कोई विमेन है, कोई वो नहीं था, उनके लिए फाउंडेशन नहीं थे कि दे हैव टू रिमेन इनसाइड द होम्स एंड दे हैव टू सिंपली डू देयर डोमेस्टिक कोर्स, ये चीजें खत्म हो रही थी, ठीक है। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ दीज ट्रेडिशंस वाज द प्रेजेंस ऑफ विमेन। फॉर इंस्टांस आपका एग्जांपल हम देते हैं आपको, कंपोजिशंस ऑफ द अंडाल, ठीक है, ये एक विमेन अलवार थी, अलवार को मानने वाली थी, विष्णु भगवान का वर्शिप करने वाली थी, और उनके सॉन्ग्स आज भी were widely used by the people, widely sung by the people till date। आज भी लोग उनके जो compositions हैं उनको गाते हैं। And Andal saw herself as the beloved of Vishnu, जैसे हमने मीराबाई का पढ़ा है, राधा जी का पढ़ा है कि उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा करी थी, ऐसे ही इन्होंने भगवान विष्णु की पूजा करी है। एंड हर वर्सेस एक्सप्रेसेस हर लव फॉर द डे, और उनका जो कंपोजिशंस है ना, वो उनका लव शो करती हैं टुवर्ड्स दी भगवान विष्णु, ओके। देन देयर वाज अनदर विमेन, कराइकल अम्मयार, ये शिवा की डिवोटी थी, एंड शी also adopted a part of extreme asceticism in order to attain her goal, ठीक है, भगवान की भक्ति पाने के लिए, ठीक है। उन्होंने बहुत एक्सट्रीम तपस्या करी थी, बहुत सीवियर तपस्या करी थी। एंड हर कंपोजिशंस वर प्रिजर्व्ड विद इन द नयनार ट्रेडिशन, और जो
भी चीजें इन्होंने कंपोज करी हैं, NNR पीपल उनको फॉलो करते हैं। तो जो हमने अब ये दोनों विमेन उनका वर्शिपर की बात करी है, they were not able to follow the social obligations, जो उनकी social duties होती थी towards the family and all, वो उनको follow नहीं कर पाते थे। they renounced their social obligations, ठीक है, but did not join an alternative order or become nuns, ठीक है। पर साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि जैसे लोग बाग संघा को ज्वाइन कर लेते थे बुद्धिज्म में, उन्होंने किसी इंस्टीट्यूशन को भी ज्वाइन नहीं करा था, ना ही वो लोग नर्स थे। बट जैसे हमने कहा ना कि केवल भक्ति इज नीडेड, है ना, तो अपनी भक्ति के थ्रू जब भगवान से अपना प्रे करती थी और उसके लिए बहुत सारी चीजें कंपोज करती थी, एंड देयर वेरी एग्जिस्टेंस एंड देयर कंपोजिशन पोज अ चेंज टू दी पैट्रियार्कल नॉर्म्स, ठीक है, जो हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना, उन सब के लिए एक चैलेंज उन्होंने खड़ा कर दिया, राइट, कि इस तरीके से वुमेन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ करके घर के बाहर नहीं जा सकती है ना। जैसे आपने मीराबाई का भी पढ़ा है ना कि वो उन्होंने अपना पूरा राज घराना छोड़ करके वो अपना भजन करती हुई एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। द सेम वे दीज women worshipper followed, and you can see the picture of the bronze image of the Karaikar Ammayar, ठीक है। एंड एक जो बहुत बड़ा रीजन यही था इन सब की वर्शिप के लिए कि लोग बाग इनको भक्ति मूवमेंट को फॉलो कर रहे थे, बिकॉज उसमें किसी तरह की कोई रिचुअल सेरेमनीज की जरूरत नहीं थी, एंड द पीपल दोज हु वर नॉट अलाउड टू डू दीज वर्शिप, है ना, दे वर नॉट अलाउड टू रीड दीज वेदास, ठीक है। अब उन सब के लिए हर चीज की परमिशन, राइट। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम? यस, should we end now? यस मैम, कर दीजिए। प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा कोई? नो मैम। Okay, I'll नो मैम, share. कुछ तो नहीं। ठीक है, I'll share the notes of this lesson today with you. Okay, do them in your Okay. notebooks. Okay, bye children. Have a safe day. मैम, हाँ बेटा। Yes, Ayan. तो आपने वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर सेंड वो कर दिया आपने? हाँ, चैप्टर 5 5 के कर दिए थे बेटा ओके इन द प्रीवियस क्लास। अच्छा बेटा, एक चीज और सुनो। यस मैम। हाँ, कि जो अब आपका टाइम टेबल